हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी। पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। टुडे वी आर हियर विथ a new topic in geography, the rocks. Well, when the geographers excavated the interior of the earth, they came across rocks. And the interesting part about them was that when they were excavating the rocks at a certain level or in certain depth of the earth, they found that there were various kinds of rocks. It was not that the composition was same. Some there was very brittle or hard, and while some were a bit soft. So geographers को थोड़ी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो एक ही डेप्थ पे है, जो एक ही लेयर पे है, वहाँ पे अलग तरह के रॉक्स कैसे पाए गए हैं. Then they started to study more and more, and then they came to a conclusion कि under various physical and chemical conditions, various different kinds of rocks are being formed. So today we'll be studying them, how the various rocks are formed and how the three different kind of जो basic rocks है उसको नाम दिया गया है, which are the igneous rocks, the metamorphic rocks and the sedimentary rocks, right? So if we talk about the definition of rocks, what can be said? Rocks, just one sec. Yes. Rocks are aggregate of one or more minerals. तो हमें पता है कि हमने minerals पढ़ा था कि there are different kinds of minerals हैं हमारे अर्थ के क्रस्ट और मेंटल में, ठीक है. Now what are rocks? अब यही मिनरल्स जो हैं, अब क्या है ये, when you segregate them they becomes mineral, and right, when you just like a mixture of minerals, that is rock, ठीक है. तो they are aggregate of one or more minerals, they may be hard or soft. ये भी बोल रहा है कि वो hard भी होता है, soft भी होती है. Hard are like granite and everything, soft are like limestone. In varied colors, कलर्स भी अलग होते हैं, some are pink, some are white, some are black, some are blue. They do not have a definite chemical composition, ठीक है. यही एक जो है वो definite नहीं होता है. So अगर हम इसकी rocks की study के बारे में बात करें, rock study की अगर हम बात करें तो इसको petrology बोला जाता है. What is petrology? Petrology is the science of rocks. Petrologist who studies the scientific methods of rock. मतलब जो भी जोग्राफर्स जो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं इन द स्टडी ऑफ द रॉक्स, दे हैव ए पार्टिकुलर नेम एंड दैट स्ट्रीम इज नोन एज पेट्रोलॉजी, एंड दोस जोग्राफर्स और द साइंटिस्ट, द साइंटिफिक कम्युनिटी विच स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ दिस रॉक्स इज नोन एज पेट्रोलॉजिस्ट. सो पेट्रोलॉजिस्ट हु स्टडीज द साइंटिफिक मेथड्स ऑफ रॉक. अगर हम बात करें तो देर आर एटलीस्ट 2000 मिनरल्स इन द क्रस्ट, ठीक है. अब इन्हीं मिनरल से अलग अलग रॉक्स निकलते हैं, एंड there are at least 6 mineral groups which forms rocks in the crust, ठीक है. अगर हम इसकी डायग्राम पे अगर ध्यान दें तो मेन igneous, sedimentary, metamorphic, ये तीन है. अभी आगे चल के हम देखेंगे कि how igneous rocks are formed, how the metamorphic rocks are formed, and how the sedimentary rocks are formed, and how from one form to another how they are interlinked, ठीक है. एक डायग्राम में अगर एक बेसिक में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इग्नेस रॉक से अगर हमें मेटामॉर्फिक, मतलब जो बेसिक रॉक्स की अगर हम बात करें ऑफ ऑल द थ्री, तो बेसिक इज द इग्नेस रॉक्स, राइट. नाउ टू चेंज इग्नेस रॉक्स टू मेटामॉर्फिक रॉक, इट हैपेंस अंडर द conditions of heat and pressure, and while to change a metamorphic rock to igneous rocks, it happens by melting and cooling under the surface of the earth, right. Similarly, when we talk of metamorphic and sedimentary, so sedimentary rocks can be converted to metamorphic rock by heat and pressure, and metamorphic rocks can be converted to sedimentary rocks by uplift and erosion. We will see later on कि how these are happening, ठीक है. Same between sedimentary and igneous, मेल्टिंग एंड कूलिंग से आपका सेडिमेंट्री इग्नेस बन जाता है, एंड इग्नेस अपलिफ्ट एंड इरोजन से सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाता है. सो दिस आर द बेसिक 3 रॉक टाइप्स, इग्नेस रॉक्स, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है. चलिए फटाफट आगे देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ ऑरिजिन, रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू इग्नेस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. ये हमने बात कर ली, ठीक है. चलिए
अगर रॉक्स की हम बात करें तो सबसे पहले हमें जानना होगा रॉक साइकिल का, ठीक है। हाउ rock forms, actually the thing of rocks is that they are not constant, कि once the rock is formed their life is permanent, right? So there might be some stage from where they have started, they have evolved, then they formed into rocks and then they disintegrated. हर चीज़ की एक साइकिल होती है, जैसे हम इंसानों की भी साइकिल होती है, द बर्थ एंड डेथ, देयर इज वाटर साइकिल, देयर इज कार्बन साइकिल, सो सिमिलरली देयर इज इवन ए रॉक साइकिल, ठीक है, वेयर we see that the rocks are formed from the finer dust. If you remember the formation of the planets, how were the planets formed? You can consider planet as an big rock structure, right? But how were they formed? In the initial stage there were just some nebular clouds and dust, right? So dust forms the basis of the formation of rocks, and similarly वो कहते हैं ना, from dust we rise and we disintegrate into dust. Similarly everything, the rocks also form from the dust, and later on when they mature and then disintegrate, they also disintegrate into dust, ठीक है। तो रॉक साइकिल की देखते हैं फटाफट क्या बोल रही है। रॉक्स डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग बट में अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म होगा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। So what is say that rock cycle is a continuous process, ठीक है, it's not like a permanent, वो चलते रहता है कि from वो नए rocks बन रहे हैं, पुराने rocks disintegrate हो रहे हैं। There are many factors in it, we'll study later how rocks under the forces of friction and gravity, they all are like, अब फ्रिक्शन है तो बहुत सारे हैं, there is chemical weathering, physical weathering, ये सब क्या है वो disintegrate हो रहा है। तो construction of rock and the disintegration of rocks together they form a continuous process through which old rocks are transformed into new ones, ठीक है। Igneous rocks can be changed into metamorphic rocks. The fragments derived out of igneous and metamorphic rocks form into sedimentary rocks, where sedimentary rocks themselves can turn into fragments and may be source for formation of sedimentary rocks. The crustal rocks when formed may be carried down into the mantle through subduction process and may turn into magma, ठीक है। चलिए इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये तो थी, ये आपको भी पीपीटी मिलेगी, पीडीएफ, तो आप इसको पढ़ लेंगे। यहाँ पे है, आपको समझना है, ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू कहाँ से करेंगे? सबसे पहले सेडिमेंट्स, यू नो द फाइनर डस्ट, दे फॉर्म द बेसिस। हमने जैसे बोला था द अर्थ ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द सेडिमेंट्स ऑफ डस्ट, सो द रॉक्स ऑल्सो फॉर्म द सेडिमेंट्स। अब इस सेडिमेंट्स में क्या होगा? देयर विल बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देयर विल बी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। When the force of gravity will act on the sediments particle will come closer to each other, ठीक है। And जब the forces of compaction and cementation they act, they started making blocks, ठीक है। अब कितना उस पे compaction हुआ, कितना उस पे cementation हुआ, those determines the length of the blocks, but the basic idea of the formation of block of rocks is the process of compaction and cementation, ठीक है। ये ध्यान देंगे, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन, इससे क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए, ठीक है। अब ये अब इफ यू सी द नेम आल्सो, द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्स, राइट? द सेडिमेंट्स फॉर्म्स द सेडिमेंट्री रॉक, एंड सिमिलरली इफ द सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड वेदरिंग, द फिजिकल वेदरिंग और द केमिकल वेदरिंग, दे डिसइंटीग्रेट बैक इनटू द सेडिमेंट्स, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि वंस द सेडिमेंट्री रॉक हैज बीन फॉर्म्ड, राइट ना, जब वो बन रहा था सेडिमेंट्री रॉक्स, तो उसमें लेयर बाय लेयर हो रहे होंगे, राइट? उसके अंदर फॉसिल्स भी आते हैं, which we'll be discussing later on. Right now we just see that how the sedimentary rock is getting converted into metamorphic. So sedimentary rocks, what happens, अभी ये जो पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल्स धीरे धीरे अपने पास में आ गए एंड देन दे फॉर्म्ड। नाउ दिस हैज बिकम ए सेडिमेंट्री रॉक। नाउ देयर विल बी मोर हीट एंड प्रेशर, ठीक है। सनलाइट है, अगर आउटर पे है या अगर अर्थ के अंदर पे है तो प्रेशर पड़ रहा है, तो व्हेन देयर इज मोर हीट एंड प्रेशर दैट गेट्स कन्वर्टेड टू मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट रॉक से कैसे बनता है?
अंडर द प्रेशर एंड हीट का, ठीक है। अब नाउ दिस मेटामॉर्फिक रॉक अगेन जस्ट लाइक सेडिमेंट्री रॉक्स under the conditions of weathering and erosions found back to sediments. Similarly, with metamorphic rocks too, under weathering and erosion से क्या होगा, this will form back to sediments, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। Now comes the igneous rock, ठीक है। By the way, this was the formation of metamorphic rocks from sediment. Another way of formation of the metamorphic rock is from the igneous rocks as well. So हम ये देखेंगे कि sedimentary rock से igneous rocks नहीं बनते हैं, but metamorphic rock is that kind of rock which is formed from the sedimentary rocks as well as from the igneous rocks, ठीक है। तो जब igneous rocks होता है, इस पे हीट एंड प्रेशर पड़ेगा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक होगा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक से igneous rocks कैसे बनता है। Now when this metamorphic rock is formed, sometimes over a period of year it will go inside the earth's crust, right? Now when under the earth crust there is more pressure, and when this pressure is acting so much that it melts, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक सीधा igneous रॉक में चेंज नहीं होगा, वो क्या होगा, उस पर जब प्रेशर पड़ रहा है, इतना प्रेशर हीट पड़ रहा है, वो it gets melt, right? तो it reaches a molten state, और molten state आपको पता है कि अर्थ के सरफेस पे नहीं होगा, but obvious that happens around 100 kilometer deep inside the earth's crust, right? तो when the melting has happened, the metamorphic rock has got converted into magma. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे कि क्या है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में तो फॉसिल्स होते हैं ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था शुरुआत में कि सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर बाय लेयर बन रहा है, द सेडिमेंट्स आर कमिंग क्लोज, तो हो सकता है सम इंसेक्ट माइट हैव कम आल्सो इन बिटवीन, तो इसमें फॉसिल्स होते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक से फिर जब मेटामॉर्फिक रॉक बना, अब ये अंडर हीट एंड प्रेशर से जब ये मेल्ट होके माग्मा बन गया है, दिस विल टेक अवे ऑल द फॉसिल्स विच हैज बीन लेफ्ट इन द रॉक्स। ये माग्मा में अब इतना ये यू अंडरस्टैंड इट्स अ मोल्टन स्टेट ऑफ रॉक, राइट? तो इतना इंटेंस हीट और प्रेशर में नो फॉसिल सर्वाइव्स, राइट? तो अब जो ये माग्मा है, ठीक है, अब ये माग्मा क्या होता है, विल ट्राई टू फाइंड ए वे आउट ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। नाउ व्हेन इट इज ट्राइंग टू फाइंड आउट ऑफ ए वे आउट ऑफ अर्थ सरफेस एंड सपोज इट कम्स आउट, इट बिकम्स लावा। जब ये बाहर निकल के हुआ तो दिस विल बी अनदर काइंड ऑफ igneous rocks. Sometimes instead of coming out the earth surface, they get solidified in the interior of the earth itself, ठीक है। तो वो भी जो होगा वो igneous rock बनते हैं। One of the basic difference between igneous rocks and sedimentary rocks is that while sedimentary rocks is stratified, ठीक है, उसमें igneous rocks नहीं है, ये तो इसमें क्योंकि ये सारा एक बार में ही सॉलिडिफाई किया हुआ है, ठीक है। एंड अगर फिर वही जब igneous rocks एक बार जब बाहर आ गया, the phenomenon of weathering will slowly disintegrate into, जैसे हमने पढ़ा कि जो rocks होते हैं तो वो continuous process होता है, rock cycle, ठीक है। तो अब igneous rocks also when exposed, like in suppose this has formed outside on the earth's surface, or like when it has formed inside and due to the weathering and wear and tear of the earth's crust, now it is exposed, so the physical weathering and chemical weathering will also work on this and that will lead it to forms of sediments. तो वही है, मिट्टी से बनना है, मिट्टी में मिल जाना है, ठीक है। तो ये एक रॉक साइकिल होता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसमें अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं igneous rocks की, ठीक है। 3 kinds of rocks were there. The first of the kind will be the igneous rocks. If we see the upper crust of the earth, right, the top 15 to 16 layers, the top 15 to 16 kilometer of the layer, so that comprises
ऑफ 95% इग्नेस रॉक्स। ठीक है, मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला कि जो मॉल्टन मैग्मा है वो बाहर निकल रहा है और कभी कभी वो बीच रास्ते में भी सॉलिडिफाई हो जा रहा है। वी नो दैट द मैग्मा is at a distance of around 100 kilometers in the earth's mantle, right, the upper layer of the mantle. So when it is making its way through the earth's crust, it has got solidified. So we know that whatever the major chunk of the igneous rocks will be, कहाँ पे होगा वो, it will be in the crust itself. So 95% almost जो है igneous rocks वो कहाँ पाए जाते हैं, अपर 16 किलोमीटर्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट पे। ठीक है, विथ अ थिन कवरिंग ऑफ सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। थिन कवरिंग क्यों बोला, क्योंकि हो सकता है कि वो इग्नेस रॉक एक्सपोज हो गया होगा, तो बाय वेदरिंग एंड लाइक देयर बी फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग, उससे वो थोड़ा वियर एंड टीयर हुआ होगा, एंड जब वियर एंड टीयर हुआ होगा तो फिर वो सेडिमेंट्स बने होंगे, उससे शायद फिर वो सेडिमेंट्री रॉक्स बना होगा एंड मेटामॉर्फिक रॉक। सो इट्स इन द थिन कवरिंग, ज़्यादा नहीं, ये थिन कवरिंग ऑफ सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो नॉट सेइंग हाउ द igneous rocks are formed. As we discussed earlier, igneous rocks are formed when molten rocks cool, forming silicate mineral crystals. वही है, ये समझिए, ये आपका ये कोर था, ये मेंटल था, अब यहाँ पे मैग्मा है और ये क्रस्ट है, राइट। तो ये क्रस्ट से ऐसे यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर ये क्रस्ट की थिकनेस थिन रही तो ये इट इज एबल टू कम आउटसाइड। इफ इट इज द क्रस्ट थिकनेस इज thick, it is not able to come out and it solidifies or cools in the earth crust itself. ठीक है, so we'll see here with an diagram of this. It is seeing see, as we said, दिस इज लाइक सपोज इसके नीचे जो है मेंटल है एंड फिर यहाँ से जो मैग्मा है निकलने की कोशिश कर रहा है एंड सपोज नाउ दिस हैज लाइक कम आउटसाइड, इट इज एबल टू फाइंड इट्स वे आउटसाइड ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये जो सपोज अगर ये नहीं निकल पाता तो इसके बीच में जो होता वो अंदर में फॉर्म हो जाता, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, intrusive rocks. See, the rocks, the igneous rocks can be differentiated into the intrusive rocks and the extrusive rock. अगर extrusive word आ रहा है मतलब exterior means वो बाहर निकल चुका है। The igneous rocks which are forming outside. See, देखिए igneous rocks की जो formation की जो basis है that is the molten magma, right? तो if that molten magma has cooled in the crust itself, it is intrusive rock, and if it has come outside then it is extrusive rocks. ठीक है, अगर कभी इतने वॉलेंटली कभी कभी ये लावा निकलता है तो इसमें थोड़े रॉक्स पार्टिकल्स भी हवा में निकलते हैं, तो दोज आर नॉन एज पायरोक्लास्ट। ठीक है, पायरोक्लास्ट्स। ठीक है, एंड देन देयर विल बी लाइक सम वोल्केनिक ऐश। ठीक है, एंड देयर विल बी लाइक इवन द प्यूमिस स्टोन भी कहते हैं उनको। ठीक है, अगर हम इग्नेस रॉक्स की बात करें, राइट, अगर हम इग्नेस रॉक्स की बात करें तो बेसिकली जो होती है रॉक्स दे आर ऑफ टू काइंड, दे आर मैफिक एंड फेल्सिक। अगर मैफिक की बात करें तो दे आर बसाल्ट एंड गैब्रो, एंड अगर फेल्सिक की हम बात करें तो दे आर rhyolite and granite. Now the basic difference between mafic and felsic is what? In felsic there is more of silica and in mafic there's more of magnesium. ठीक है, और जो mafic होंगे वो उनकी टेक्सचर और कलर भी जो होगी they are more of a darker one. तो फटाफट आके देखिए, हम लोग देख लेते हैं ये फीचर्स क्या होते हैं। they say they are hard, granular and crystalline. ठीक है, this is a prominent feature of igneous rocks because they are formed in crystals. लंबे लंबे उनके क्रिस्टल्स होते हैं। तो
इनका एक अगला क्या है, दे डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, thirdly they do not allow water to percolate through them. And now see what happens, cause this has like forming crystals, and since there is no space left in between them, so there won't be any chance for the percolation of water or anything through it. अब क्योंकि अब उसके अंदर पर्कुलेट नहीं कर पाएगा चाहे एयर एंड एवरीथिंग, तो वेदरिंग भी नहीं होगी। तो जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो वेदरिंग में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। सो इट इज दैट स्नो लेयर लाइक सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। इट इज दैट इज लेस अफेक्टेड बाय केमिकल वेदरिंग, क्योंकि वाटर इज नॉट एबल टू गो, एंड वी नो दैट केमिकल वेदरिंग की सबसे बेसिक एलिमेंट जो ज़रूरत होती है दैट इज वाटर, एंड इफ वाटर इज नॉट देयर सो केमिकल वेदरिंग उतनी इफेक्ट नहीं करती है इग्नियस रॉक्स को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नाउ व्हाट इज इस माग्मा एज ए सोर्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, कि जो इग्नियस रॉक है उसकी सोर्स क्या है, माग्मा है, ठीक है। जैसे कि हमने वही बात करा कि द मिक्सचर ऑफ द मोल्टन रॉक्स विच मेक्स द इग्नियस रॉक्स इज कॉल्ड माग्मा, यही जो है माग्मा इसी से बनती है। माग्मा इन फैक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ मोल्टन रॉक्स, वॉलेटाइल्स एंड अदर सॉलिड्स originated from partial melting of lower crust and upper mantle, वही asthenosphere से। When the molten magma goes down deep within the earth and gets solidified, it is called plutonianism. On the contrary, molten magma can also come out on the surface of earth via volcanic, ठीक है। चलिए इस डायग्राम से इसको हम लोग क्विकली समझ लेते हैं, वो सब टेक्स्ट आप पढ़ लेंगे। अब क्या था, हमने पढ़ा कि जो इंटीरियर में था इसका जो मेंटल था वहाँ पे ये माग्मा पड़ा हुआ है, ठीक है। सॉरी ये आउटसाइड, तो अंदर में इसका माग्मा पड़ा हुआ है। जो माग्मा अंदर में वो सॉलिडिफाई हो गया, वो इंट्रूसिव हो गया, जो माग्मा बाहर आए वो एक्सट्रूसिव हुए। नाउ व्हेन दिस एक्सट्रूसिव इज व्हाट इज सेड, दिस द कूलिंग टाइम इज वेरी लेस, क्योंकि यहाँ पे अंदर में जो है उसको फिर भी टाइम लगता है क्योंकि उसको हवा नहीं मिल रही है and everything, but here since the air is able to take away the heat, the cooling time is vary from seconds to months. The texture is invisible or macroscopic grains, ठीक है। इसमें जो होते हैं इसमें ग्रेन नहीं होते हैं, and it depends on the flow of the lava, if it is thick or thinner, and secondly accordingly the extrusive rocks are formed. अगर इंट्रूसिव की बात करें जो अंदर में हो रहा था, द कूलिंग टाइम इज 1000 of years, बट ऑब्वियस देयर इज नो एयर और समवन टू टेक अवे द हीट, दैट हैज टू बी स्लोली डिसिसिपेटेड, सो व्हेन सच ए थिंग हैपेंस इट टेक्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और प्लूटोनिक में क्या होगा, तो द कूलिंग टाइम सबसे मैक्सिमम होगा मिलियन ऑफ ईयर्स, बट द टेक्सचर विल बी द लार्जर ग्रेन्स। तो अगर ग्रेन्स की अगर हम बात करेंगे तो जो सबसे बाहर में आया एक्सट्रूसिव रॉक उसकी सबसे छोटी ग्रेन्स होती हैं, and then the intrusive and then the plutonic। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की बात करें तो माग्मा दैट सॉलिडिफाइज बिलो द अर्थ, राइट, इट सॉलिडिफाई बिलो द अर्थ। So it solidifies below the earth's surface and remains surrounded by older pre-existing rocks. The rocks cool slowly so they develop large mineral crystals that are visible to the eyes, ठीक है। Examples देख लेते हैं फटाफट, हमने अभी पढ़ा था ग्रेनाइट एंड डियोराइट। ग्रेनाइट की अगर हम बात करें तो दे आर बैथोलिट काइंड जनरली एंड इग्नियस रॉक्स। फेल्सिक, डियोराइट दैट इज इंटरमीडिएट, ठीक है। किस चीज का इंटरमीडिएट, बिटवीन ग्रेनाइट एंड गैब्रो, ठीक है। अगर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की और बात करें तो अनदर एग्जांपल विल बी गैब्रो। गैब्रो क्या है, दैट इज मोर ऑफ मैग्नीशियम, सो इट इज एन मैफिक इग्नियस रॉक्स। अगर हम देखेंगे जो पिछला वाला हमारा था, एक सेकेंड, ये जो ग्रेनाइट जो था अगर आप देखेंगे इट इज फेल्सिक, ठीक है। बट यही चीज गैब्रो पे अगर जब हम देखते हैं तो इट इज मोर ऑफ ए मैफिक इग्नियस रॉक्स, ठीक है, इक्विवेलेंट टू बसाल्ट, ठीक है। ये याद रखना है। देखिए आपको ये इतना सब एग्जांपल्स नहीं, पर ये जो कुछ नाम हैं ग्रेनाइट एंड गैब्रो, यू हैव टू हैव एन ए गुड अंडरस्टैंडिंग कि हाउ गैब्रो इज एन मैफिक और एन फेल्सिक रॉक। सो वी नो गैब्रो इज एन मैफिक इग्नियस रॉक, ठीक है। दिस
पेरिडोटाइट, ट्रायोलाइट, एंडेसाइट, बसाल्ट, कोमाटाइट, डायबेस। नाम याद नहीं होंगे और इनको नाम याद नहीं रखना, बस एक थोरो रीडिंग मार लेना है कि कल के डेट में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आ जाता है कि दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रॉक्स, ठीक है, तो आप एक बार पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि हाँ दिस आर काइंड्स ऑफ इग्नेस रॉक्स। Now what it says, they are further classified into plutonic, hypobasal, batholiths, laccoliths as follow। ठीक है, मतलब अगर अंडर में फॉर्म हो रहे हैं उसके किस हाइट पे फॉर्म हो रहा है उससे वो डिटरमाइन होता है वो किस तरह का है। तो चलिए फटाफट इनको देख लेते हैं एक एक करके। अगर हम प्लूटोनिक की बात करें, ठीक है, इग्नेस रॉक which has been named as plutonic, what is it? Generally very large crystals, ठीक है, इसमें क्या होगा, very large crystals and are formed due to cooling of magma very deep inside the earth, ठीक है, therefore it will take millions of years, क्योंकि उसको वहाँ पे आउटर सरफेस नहीं है कि एयर मिला है और वहाँ पे वो इजिली और क्विकली सॉलिडिफाई कर गया। the deeper the magma solidifies in the earth's crust, the maximum amount of time it will take. So plutonic is one such a kind of igneous rocks। अगर हम hypobasal ये सब volcanic की अगर हम बात करें तो it is consolidated in a zone above the base of earth crust and hence has distinct structural characteristics। ठीक है, ये कहाँ consolidate होता है, in a zone above the base of earth crust, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर, ठीक है, बैथोलिथ्स एंड लैकोलिथ्स, ठीक है, ये दो नाम है, इनको थोड़ा देख लेंगे। बैथोलिथ्स में क्या है कि they extend to greater depths and larger areas, and laccoliths a sheet intrusion that has been injected between two layers of sedimentary rocks। ठीक है, इसको कैसे इसको समझ लेते हैं कि ये एक जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स है यहाँ पे। अब क्या यहाँ पे भी सेडिमेंट्री रॉक्स था, अब जो माग्मा फ्लो हुई यहाँ से, राइट, ये शायद इधर, अब क्या माग्मा फाइंड्स ए वे आउट। नाउ व्हेन इट वाज ट्राइंग टू फाइंड ए वे आउट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, it found a way this side also between the two distinctive layers of sedimentary rocks। जब ये ऐसा हुआ और ये यहाँ पे आके फ्लो होके ये एरिया फिल कर दिया, राइट, ये एरिया फिल कर दिया एंड तो दिस विल बिकम लैकोलिथ। ये इधर चलिए बाहर कुछ होके आगे होंगे वो एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक्स बन गया होगा, पर जो सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में जो उन्होंने एरिया को फिल करके सॉलिडिफाई हुआ था दैट वाज लैकोलिथ्स। ठीक है, उसी तरह बैथोलिथ्स होते हैं, दे आर आल्सो फॉर्म्ड इनसाइड एंड लाइक दे हैव डीप लाइक लेयर्ड, उसको भी बैथोलिथ्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने इंट्रूसिव इग्नेस रॉक्स की बात कर ली। इंट्रूसिव इग्नेस रॉक्स विच वर फॉर्मिंग इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक्स। एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक्स आर विच इज हैपनिंग एक्सटर्नली। ठीक है, एक्सट्रूसिव मीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। Extrusive igneous rocks, what it says if the magma reaches the surface and emerges as lava it forms extrusive rocks। but obvious हमें पता है कि magma जब अर्थ के क्रस्ट के अंदर रहता है तो sorry the molten state which remains inside the earth crust that is known as magma and which comes out through a volcano is known as lava। so it says if the magma reaches the surface and emerges as lava it forms extrusive igneous rocks। extrusive igneous rocks cool very rapidly क्योंकि उसको एयर है जो उसकी हीट ले जा रही है। और अगर मतलब सपोज ओशन के अगर वो क्रस्ट पे अगर वो बाहर निकले तो वहाँ पे वाटर भी है विच विल डिसिसिपेट इट्स हीट्स वेरी इजीली। सो एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक्स कूल वेरी रैपिडली ऑन द लैंड सरफेस और ओशन बॉटम एंड द सो क्रिस्टल्स ऑफ ओनली मैक्रोस्कोपिक साइज। हमने क्या पढ़ा, जैसे प्लूटोनिक था जो अंदर में थे उनकी जो ग्रेन साइज थी काफ़ी बड़ी थी, पर यहाँ पे जो है काफ़ी छोटे साइज के होते हैं। अगर हम एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक्स की बात करें, बसाल्ट, ठीक है, एंडेसाइट एंड रायोलाइट, ठीक है, इसको आप लोग बार की निमोनिक से भी याद कर सकते हैं, लॉयर्स एसोसिएशन बार, वो शराब वाला बार नहीं। ठीक है, चलिए तो ये आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते टू काइंड ऑफ बेसिक इग्नेस रॉक्स। ठीक है, जो हमने पहले अभी दो स्लाइड्स पहले देखा था हमने, देयर आर फेल्सिक एंड मैफिक रॉक्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया टू डिफरेंशिएट बिटवीन
felsic and mafic. So felsic will be those rocks which are rich in silicon, oxygen, aluminum, सोडियम एंड पोटाशियम। ठीक है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, सोडियम इज Na एंड पोटाशियम। ठीक है, इसको थोड़ा एक दो रीडिंग में करेंगे तो ध्यान में रहेगा कि फेल्सिक रॉक्स में क्या होती है। और नहीं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैफिक रॉक है, मैग्नीशियम Mg, द रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन, दैट इज मैफिक। इफ द रॉक इज हाईली डोमिनेटेड, अब क्या है कि मैग्नीशियम और आयरन बहुत ज़्यादा है, लाइक इन द इंटीरियर, तो इट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा मैफिक। ठीक है, उसको उन्होंने अल्ट्रा मैफिक बोल दिया। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मैफिक में जो है मैग्नीशियम और आयरन है और बहुत ज़्यादा कंटेंट है, तो अल्ट्रा मैफिक है। अगर हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे, सी दिस इज इफ यू सी द टेक्सचर, ठीक है, इट्स मोर ऑफ एन डार्कर कॉम्प्लेक्स मैफिक। फेल्सिक विल बी ऑफ एन लाइटर कॉम्प्लेक्स, जैसे ग्रेनाइट हो गया, ये ग्रेनाइट का है और ये हॉर्नब्लेंड का है। ठीक है, आप देख सकते हैं, क्लियरली दिख रहा है कि जो मैफिक वाले रॉक्स होते हैं वो थोड़े डार्क कंपोज होते हैं। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स पे। ठीक है, अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स, राइट। तो सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन ही जब बेसिस सेडिमेंट्स हैं तो लेयरिंग होंगे, क्योंकि स्लोली इट हैज फॉर्म्ड, इट हैज नॉट फॉर्म्ड वंस, लाइक एक बार में वो फॉर्म नहीं हुआ है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर मेड फ्रॉम लेयर्स। ठीक है, आर मेड फ्रॉम लेयर्स। ठीक है, और स्ट्राटा ऑफ मिनरल पार्टिकल्स फाउंड इन अदर रॉक्स दैट हैव बीन वेदर्ड एंड फॉर्म न्यूली होल्ड ऑर्गेनिक मैटर। या ये भी हो सकता है कि कोई पुराने रॉक्स थे, उससे वेदरिंग होके फिर जो वो सेडिमेंट्स बढ़े, that was been flown away and then that they got compacted, so and then that it becomes new sedimentary rock. So this is they are made from layers or strata of mineral particles found in other rocks that have been weathered and form newly formed organic matter. Sedimentary rocks are important because, हाँ देखिए अब इम्पॉर्टेंट क्यों है सेडिमेंट्री रॉक, बोलेंगे सर चलिए इग्नेस रॉक्स तो अंदर में हमें ये पता चल गया वो पता चल गया, मेटामॉर्फिक रॉक की भी कोई इंपॉर्टेंस होगी, but why is sedimentary rock important? See, as we know that metamorphic rocks, the igneous rocks have no fossil fuels in them, while sedimentary rocks have fossils in them. अब fossils क्या है? Those were the animals and plants which got trapped between those sediments, and slowly over a period of time those sediments they formed into sedimentary rocks. पर वो fossil, वो जो एनिमल या इंसेक्ट और जो प्लांट्स थे उसमें रह गए थे, दे टर्न्ड इनटू फोसिल्स। सो स्टडिंग द सेडिमेंट्री रॉक्स गिव अस ए नॉलेज ऑफ लाइफ एट वेरियस स्टेजेस इन ईयर्स, कब कौन से काइंड ऑफ एनिमल्स रहते थे, हमारा मतलब ह्यूमंस कब आए या उससे पहले कितने, व्हाट आर द साइज ऑफ द एनिमल्स और द प्लांट्स। सो देयर फोसिल्स, बिकॉज वी कैन एनालाइज एंड kingdom of animal or plant through its fossil. So sedimentary rocks help understand them. How? Because they preserve a record of ancient landscapes, climates and mountain ranges as well as the history of the erosion of earth. ठीक है, इसलिए sedimentary rock इतना important होती है। ठीक है, अगर हम उनकी एग्जाम्पल देखें फटाफट तो वन इज ब्रेशिया, कैलिशे, चॉक, शर्ट, limestone, diatom, conglomerate, coal, sandstone, shale, dolomite, siltstone, cochina, ironstone, gypsum, rock salt, ये जितने हैं they all are sedimentary rocks। ठीक है, एक बार बस इनको नज़र देख लेना है कि आपको एक फेयर आइडिया रहे कि हाँ दिस इज सेडिमेंट्री रॉक। ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि कोल है तो इट्स एन लाइक इग्नियस रॉक, इट इज एन सेडिमेंट्री रॉक। In addition, fossils are found in abundance in sedimentary rocks younger than 600 million years, and they provide evidence of the evolution of life. ठीक है, and they provide evidence of the evolution of life through time, कि कौन से टाइम पीरियड पे कौन से काइंड ऑफ एनिमल्स दे एग्जिस्टेड और दे पेरिस्ड। ठीक है, क्योंकि उनकी फोसिल्स ट्रैप्ड होती हैं, सो उससे हमें पता चल जाता है। तो what they say, they are found over 90% of the crust but contribute only 5% in the crustal volume। ठीक है, जो क्रस्ट की वॉल्यूम होती है, क्योंकि मैं पता है सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं दे हैव लाइक ट्रैप्ड फोसिल्स और एयर इन बिटवीन देम, सो
they contribute very less towards the crustal volume. crustal volume में इनकी कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम होती है, तो crustal volume में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो होगी वो igneous rocks की है, ठीक है। बट क्योंकि अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं ऊपर पे फॉर्म हो रहे हैं, अंदर में नहीं फॉर्म हो रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग ऑन द सरफेस, सो जो मोस्ट probably what will be the surface of the earth crust, that will be covered by 95% of it by the sedimentary rocks. Let's move further. It is saying the features of sedimentary rocks. So if we talk of the features, one of the basic features अभी तक हमने बात क्या करा कि they contain fossils, right? They contains fossils. Plus, since they have been like forming layers after layer, they will consist of layers. The third weakness is they are not forming inside the earth crust or mantle. So this is formed by the earth surface by the hydrological system. ठीक है, ये भी easily point समझ में आ गया. Now what is saying? The process of sedimentary rock formation is called, ये आप लोग को यहाँ समझ में नहीं आ रही होगी, लिथोफिनिक सेडिमेंट्री रॉक्स. चलिए इसको एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे ये डबल ये हो गया तो इसलिए आप लोग को समझ में नहीं आ रही होगी, इसमें मैं आपको आगे बताता हूँ. So it is saying types and examples of sedimentary rocks, right? So if we talk of the types and example, the first will be clastic. ठीक है, क्लास्टिक में कौन, सैंडस्टोन आ जाते हैं, सिल्टस्टोन आ जाते हैं, कॉन्गोमरेट्स, मडस्टोन, क्ले स्टोन. अब क्या है कि इसमें बेसिक आप ये जान लेना कि क्ले स्टोन में जो होगा मेनली क्ले है, या मडस्टोन में मेनली सिल्ट एंड क्ले है, एंड कॉन्गोमरेट में द सैंडस्टोन कंटेनिंग पीबल्स ऑफ हार्ड रॉक. मतलब ये जो बना था सैंडस्टोन, ठीक है, सैंड ग्रेन से, उसी में अगर थोड़े वो हार्ड रॉक्स आ जाते हैं तो कॉन्गोमरेट हो जाता है, और अगर सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं तो दैट इज नॉट सिल्ट स्टोन, राइट. नाउ अनदर फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इज ऑर्गेनिक. ठीक है, दिस इज कैल्सीरियस टाइप लाइक लाइमस्टोन एंड चाक. ठीक है, और अगर कार्बन इसमें ज़्यादा मात्रा है तो दैट इज नॉन एज पीट, लिग्नाइट एंड कोल. ठीक है, सो कोल वगैरह जो भी है दे आर फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. अगर हम केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करेंगे तो दे आर डोलोमाइट, रॉक सॉल्ट एंड जिप्सम. ठीक है, काला नमक जो खाते हैं दैट इज रॉक सॉल्ट. दे ऑल आर फॉर्म्ड ड्यू टू द केमिकल प्रोसेस. ठीक है, दिस आर द वेरियस एग्जांपल्स एंड टाइप्स. Now the third one, the metamorphic rocks, right? We have discussed about the igneous rocks and we have discussed about the sedimentary rocks. Now the sedimentary rocks, sometimes when the landscape of a place changes and the forces of heat and pressure work on a particular area, so in that kind the sedimentary rocks, what happened? They get transformed into metamorphic rocks. Similarly, igneous rocks also under conditions of heat and pressure gets converted into metamorphic rocks. कैसे होता है उसको फटाफट देख लेते हैं. Metamorphic rocks are found from the pre-existing rocks. ठीक है, sedimentary rocks में क्या था, that is not happening due to an pre-existing rocks. उसमें sediments जोड़ रहे थे. ठीक है, और igneous rocks में magma से बन रहा था. पर जब हम metamorphic rock की बात करते हैं तो उसमें pre-existing rock है. ठीक है, चाहे वो sedimentary हो चाहे वो igneous हो. तो इसे formed from the pre-existing rocks, from pre-existing rocks within the earth crust by changes in temperature and pressure. तो मतलब जो मेन दो चीज काम कर रहा है उस पर वो टेम्परेचर और प्रेशर है. इसी से मेटामॉर्फिक रॉक की उत्पत्ति होती है. एंड बाय केमिकल एक्शन ऑफ फ्लूइड. रॉक्स आर, अगर इसके नाम देखें तो शीस्ट, जेनिस, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, मार्बल एंड ग्रेनाइट. ठीक है, अंडर प्रेशर ऑफ हीट एंड टेम्परेचर ये सारे रॉक्स कन्वर्ट हो जाते हैं. सो दे आर मेटामॉर्फिक. अगर हम फीचर्स की बात करें तो इट फॉर्म ड्यू टू रिक्रिस्टलाइजेशन. मतलब क्रिस्टलाइज हुआ था वो नॉट इज हैपनिंग अगेन, सो रिक्रिस्टलाइजेशन. इट इज फॉर्म ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर. हमने बहुत बार जिक्र कर चुके हैं इसके. वेरी स्मूथ इन टेक्सचर. दिस इज अनदर फीचर्स ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक. नाउ इट सेज इट्स कंसिस्ट ऑफ लेयर्स. Sometimes it consists of layer like the sedimentary rocks. Exhibits wide range of colors, barely contain fossils. पूरा रूल आउट नहीं करता है.
ठीक है, क्योंकि हीट एंड प्रेशर से अगर बन रहा है तो द हीट एंड प्रेशर विल take away the fossil which has like probably come inside, right? So it's a, but sometimes there might be fossils, right? So it says that barely contains fossils. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। वन इज द फॉलिएटेड and the other is non-foliated. So what do you understand by the terms like foliated and non-foliated? ठीक है, इसमें क्या होता है कि if there has been like some space has come due to like the trapping of the air or something, so वो एक foliation हो गया उसमें, तो उसको हम लोग foliated metamorphic rocks कहते हैं, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं इसको। foliated metamorphic rocks एग्जाम्पल्स दे रखा है पहले इन्होंने, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या आएंगे? जिनीस, फेलाइट, सिस्ट एंड स्लेट, ठीक है। व्हाट इज सेइंग? विच हैव ए लेयर्ड और ब्रांडेड अपीयरेंस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपोजर टू हीट एंड डायरेक्ट प्रेशर, ठीक है। चलिए डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको इस सिमिलर दिख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, बट इफ यू सी हियर, सी यहां से यहां का जो टेक्सचर है ब्लैक है, यहाँ का जो यहाँ का टेक्सचर है वो थोड़ा वाइटिश है, फिर यहाँ पे जो है थोड़ा ब्लैक है। सो इट इज दैट इज ए लेयर्ड, ठीक है, अपीयरेंसेस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपोजर टू हीट एंड डायरेक्ट प्रेशर, दैट इज फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। अगर नॉन फॉलिएटेड की बात करेंगे सच एस मार्बल एंड क्वार्ट्जाइट, नॉन फॉलिएटेड के एग्जांपल क्या है? परफेक्ट मार्बल एंड क्वार्ट्जाइट which do not have a layered। देखिए यहाँ पे डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, ये स्ट्रक्चर कोई ऐसा भी हो पर यहीं पे कोई लेयरिंग टाइप का तो नहीं दिख रहा है, सो इट इज नॉन फॉलिएटेड, राइट। चलिए मेटामॉर्फिक रॉक की अगर हम बात करें तो एक हम लोग ये देखते हैं, हमने क्या देखा कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो फॉर्म होंगे दे विल फॉर्म फ्रॉम द इग्नस रॉक्स और द सेडिमेंट्री रॉक्स। सो व्हेन इट इज फॉर्मिंग फ्रॉम इग्नस रॉक्स अंडर द कंडीशंस ऑफ हीट एंड प्रेशर इट विल गिव टू ए डिफरेंट काइंड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, एंड सिमिलरली सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर कंडीशन ऑफ हीट एंड प्रेशर विल गिव टू ए डिफरेंट काइंड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हम लोग फटाफट ये देख लेते हैं कि अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ हीट एंड प्रेशर इग्नस और सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू व्हाट काइंड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अगर हम इग्नस रॉक्स की बात करें, ठीक है, जैसे ग्रेनाइट है, ठीक है, इट गेट्स चेंज इनटू जेनेसिस, ठीक है, ग्रेनाइट जो है वो जेनेसिस में चेंज हो जाती है। और अगर बसाल्ट दैट इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ इग्नस रॉक्स, बसाल्ट विल गॉट चेंज टू हॉर्नब्लेंड, ठीक है, हॉर्नब्लेंड में चेंज हो जाता है। ये बेसिकली दो इग्नस रॉक्स के एग्जाम्पल। तक हम सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर हम बात करें, सो सेडिमेंट्री रॉक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हैं। तो लाइमस्टोन गेट्स चेंज इनटू मार्बल, द कोल जो कोयला होता है दैट्स बिकम टू ग्राफाइट कोल, राइट। सैंडस्टोन विल गेट चेंज इनटू क्वार्ट्जाइट, एंड सेल या क्ले विल गेट इनटू स्लेट और मैकासीट, ठीक है। तो आप लोग को इसमें ये याद रखना है कि लाइक दे विल आस्क कि जेनेसिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ रॉक्स, यू नो इग्नस, पर इग्नस में कौन सा? Is it formed from granite or like basalt? So we know that it is formed from granite, right? उसी तरह आपको ये पता होगा कि बसाल्ट से हॉर्नब्लेंड होगा, लाइमस्टोन से मार्बल, एंड कोल से ग्राफाइट कोल, सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट, शेल क्ले से स्लेट और मैकाशीट, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है तो इसको याद कर लेंगे, कोई मुश्किल की बात नहीं है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। With this we have ended the chapter on rocks and I hope आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी on what are the different kind of rocks, like as we discussed the metamorphic, the sedimentary and the igneous, and how are they formed, the rock cycle, and how the various kinds of metamorphic rock was also been formed from the igneous and the sedimentary rocks. I hope you enjoyed the lecture. If you have any problem, do download our app
and log into the student portal and raise your query. Our team will be there to help and support you. Thank you.